Okay, let's start. Let's start. What we have covered till date or so far is what we have covered is I'll give you a quick recap. I will not I'm not explaining everything to you, but I'm just giving a quick recap. What we have learned yesterday was we were discussing about the type of matrices in which we have covered this section: square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, unity matrix, upper triangular matrix, lower triangular matrix. Next one was comparable matrices, equality of matrices. And on equality of matrices, I have given to you two questions. One was this on your screen, and second was like this one. I have given these two homework to you. That was chapter 1. You have to complete your chapter 1 by all the exercises, and the module of chapter 1, that was homework given to you. And now today onward, today I'm going to start the multiplication of a matrix by a scalar. What is a multiplication by a scalar? Is this mean that we are going to multiply a scalar quantity to a matrix or a matrix by a matrix? Right now we are discussing multiplication of a matrix by a scalar. Scalar means a single quantity. It can be anything. It can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be negative also. -1, -2, -3, -4, -6. It can be anything. But it should be belongs to your real number quantity. Or if you are taking a scalar, then you can't say that it is a complex quantity, but scalar quantity must belong to your real numbers. That's it. So multiplication of a matrix by a scalar means when we multiply, let's take an example. When we multiply any of your matrix, this matrix can have a different orders. That means it can be a 2 cross 2, 3 cross 3, 2 cross 3, 4 cross 5. So matrix of order, let's say 2 cross 3, 2 cross 3, that means rows are 2 and columns are 3. We can multiply a scalar quantity by this matrix. Scalar quantity, let's say 2. So what this multiplication by scalar says, this says that this scalar quantity multiply each and every element of the matrix present in it. Once again, this scalar quantity will be multiplied by each and every element of this matrix, and you can say that this matrix will become 2 multiplied by 2, 4, 2 multiplied by 3, 6, 2 multiplied by 4, 8, 2 multiplied by 5, 10, 2 multiplied by 6, 12, 2 multiplied by 7, 14. Order was 2 cross 3. So should our order get changed? No, this order must be 2 cross 3. So what this multiplication of a scalar says is it's only multiplied, it only gets multiplied by each and every element or of your matrix. That's it. So the same phenomenon occurred when you multiply a negative quantity with this particular matrix, or we can take another example of this. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is a 3 cross 3 matrix. This same phenomena can occur when you multiply by -3, right? So -3 gets multiplied by 1, it becomes -3. -3 gets multiplied by 2, it becomes -6. -3 gets multiplied by 3, it becomes -9. -12
-15, -18, -21, -24, -27. All the element of your previous matrix gets multiplied by this -3 and you will get your matrix by this मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट. सिंपल सा फंडा है. एक स्केलर मैट्रिक्स है. वो स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर तो सिंपल क्वांटिटी है, वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो रहेंगे वो उस पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर सजेस्ट करता है. तो पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया कितना 2x3 का, मल्टीप्लाई किया तो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, फिर -3 का लिया सबसे मल्टीप्लाई हो गया. तो दिस स्केलर कैन बी 0 और नॉट. Yes, this scalar can take any value. This can be negative, this can be 0, this can be positive. अब बोलोगे सर ये स्केलर 0 हो सकता है क्या? हाँ, ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज. ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी सजेस्ट करता है. ठीक है, बताइए यहां तक आप सब लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और अपना डाउट पूछिए. अदरवाइज चैट में येस और डन लिखिए. बताओ सौम्या. सर अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा. हाँ एनी रियल क्वांटिटी यू कैन चूज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई. स्केलर इज एनी रियल क्वांटिटी. सर, मतलब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो हाँ चलेगा ना, फ्रैक्शन भी रियल क्वांटिटीज में आता है या नहीं आता है? आता है. तो मल्टीप्लाई होगा यार, कोई दिक्कत नहीं. यस. ठीक है, हाँ सर. संतृप्ता. सर हम लोगों के मैट्रिक्स के एलिमेंट में तो हम लोग डिफाइन किए थे रियल या कॉम्प्लेक्स, कोई भी मतलब अंदर जा सकता है. हाँ, तो ये चीज अभी स्केलर के लिए है, लेकिन आपके जेई एग्जाम में ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकता है. वही नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलने वाला हूँ कि ये जो स्केलर है अभी स्केलर बोला गया है, लेकिन तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केलर या उसमें नहीं लेके आ सकते ना, कैटेगराइज नहीं कर सकते आप कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो भी सेम ही रहेगा. अब बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल एलिमेंट रहेगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. यस सर. ठीक है, थैंक यू सर. द्रविड़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट कैसे होएगा जब तुम इसे इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे? लेकिन बेटा इंफिनिटी रियल क्वांटिटीज में नहीं आता है तो तुम उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. You can't suggest a multiplication which do not comes under the category of real number for a scalar only. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. Next topic is addition of matrices. Then we will study its properties as well. So addition of matrices says that two matrices can be added only when its order is same, or these matrices are comparable matrices. Then we can operate on this addition operation. That means if this matrix we are having A has an order 3 cross 3, then your B matrix which you are going to add in matrix A must have the order 3 cross 3. That means these both matrices A and B must be comparable matrices, then only you can add them to find your answer. So first condition क्या है? First condition is that A and B must be comparable matrices. First condition. That means your A and B must have same order. Comparable matrices are those whose order are same.
So comparable matrices are those whose order are same. So your A and B must be comparable matrices. That means A and B must have same order. Then you can add them by using elementary addition. Like, for example, we have a matrix A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, whose order is 2 cross 3. And we have a matrix B is A, B, C, D, E, F. Its order is also 2 cross 3. So you are saying that we want to find the addition of these two matrices. So first we have to check if your matrices A and your matrix B must have the same order. These orders are same. So you can say that these orders are same. So we can just add them. How we can add these two matrices? Add by element. ठीक है, तो ऐड करना होगा हमको एलिमेंट बाय एलिमेंट. तो 1 को ऐड करेंगे किसके अंदर? ए के अंदर. 1 को ऐड करेंगे बी के अंदर भी ऐड करेंगे क्या? नहीं. ये पोजीशन कौन सी है? A11. ये पोजीशन कौन सी है? A11. तो A11 पोजीशन और A11 पोजीशन एक दूसरे से ऐड होंगे. ऐसे ही A12 पोजीशन और A12 पोजीशन एक दूसरे से ऐड होंगे. ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे. ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे से ऐड होंगे. 4 प्लस डी, ये दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे. 5 प्लस ई, ये दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे. 6 प्लस एफ एंड योर ऑर्डर. Finally, your order was which was earlier 2 cross 3. Your order must be right now it is the same 2 cross 3. ठीक है, तो एडिशन का मतलब है A मैट्रिक्स एक है, B मैट्रिक्स एक है, 2 क्रॉस 3 दोनों का ऑर्डर है, दोनों को ऐड कर दो सीधा. मतलब 1 ऐड हो जाएगा A के साथ, 2 ऐड हो जाएगा B के साथ, 3 ऐड हो जाएगा C के साथ, 4 ऐड हो जाएगा D के साथ, 5 ऐड हो जाएगा E के साथ, 6 ऐड हो जाएगा F के साथ. बस सेम आंसर आ जाएगा. Exact same thing will happen when you subtract these two matrices. ठीक है, सेम काम होगा अगर बाई चांस एडिशन और सब्सट्रैक्शन नन अदर द सेम थिंग. ठीक है, तो एक जैसा ही है. क्या है? A माइनस बी आप करोगे ना तो बस कुछ नहीं है, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए. A माइनस बी के भी अंदर भी क्या हो जाएगा आपका? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनके बीच में ही ये ऑपरेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन लगेगा. तो your corresponding elements will hold your addition and subtraction operation. That means 1 plus a, यहां पे आया था, यहां आ जाएगा 1 minus a क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट a का होना चाहिए. 2 minus b, तो 2 minus b, 3 minus c, ये 3 minus c, 4 minus d, 4 minus d, 5 minus e, 5 minus e, 6 minus f, 6 minus f. ये हो गया 2 cross 3. ठीक है, बाद में थोड़े टाइम के बाद में हम लोग इसे कुछ और भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक ही टाइप का ऑपरेशन मान सकते हैं. तो आप बोल सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी आपको इस तरीके का रिजल्ट देगा. बताइए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो पूछिए. ये हमारा बेसिक एडिशन मॉडल है. आप लोग क्या करना चाहते हैं, मॉडलिंग कैसे काम करती है? ये a और b अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं तो हम सीधा सीधा उनको ऐड कर देते हैं. If you have any doubt, please raise your hand. I will unmute you and you can ask your doubt. And if you don't have any doubt, please write yes or done in the chat option. Okay, let's move forward. The next topic is properties of this matrix addition. Properties of this matrix addition, yeah, addition of matrices. So let's start with these properties.
Let's start with this properties. First, in the relation function, we have gone through this commutative property. Commutative property. What commutative property was there? Commutative property says that if we have applied an operation on two of your elements, then they should get the same answer when you revert them. Like this, the B property says if we add these two matrices, then you can say that if we add these two matrices, then we can say that B plus A and A plus B will give us the same answer. B plus A and A plus B will give us the same answer. We can take some examples of this particular property in which we have taken A is a 2 cross 2 matrix. I'm taking these matrices as an example. You can take your own correct. This is 2 cross 2. This is 2 cross 2. When we add A plus B, final answer would be this. Corresponding elements will get added. So 1 plus A is 1 plus A. 2 plus B is your 2 plus B. 3 plus C is 3 plus C. 4 plus D is your 4 plus D. And final answer would be this. Likewise, we should calculate or we should have this B plus A addition. So when we are taking B in the front side or left side of this addition symbol, so your element from B would be first. This would be like this: A plus 1, B plus 2, C plus 2, C plus 3, and D plus 4, and it must get added with this particular corresponding elements. A must get added with 1, B with 2, C with 3, D with 4, and your answer would be like this. ठीक है? तो दोनों को देख के, इस पूरे को देख के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बेटा A प्लस B जो है वो B प्लस A के बराबर आ रहा है. क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर 1 प्लस A लिखा हो और A प्लस 1 लिखा हो, या 2 प्लस B लिखा हो और B प्लस 2 लिखा हो, 3 प्लस C लिखा हो और C प्लस 3 लिखा हो, 4 प्लस D लिखा हो या D प्लस 4 लिखा हो? तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा. इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. You can make your statement now that matrix addition is commutative. What we have done here is, if we add A matrix into the B matrix, then the answer we will achieve will be same if we add B first in the A matrix. मतलब अगर A matrix और B matrix को ऐड किया जाए, A पहले लिया जाए, B बाद में, तो जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा अगर B को पहले ले लिया जाए और A को बाद में ले लिया जाए. तो A प्लस B और B प्लस A दोनों से अपना आंसर कितना आएगा? सेम. तो दोनों से आंसर आएगा सेम. अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप अपना डाउट पूछिए. अगर दिक्कत नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए. ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इसको प्रॉपर्टी है ये. फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये. वर्षा या वरद, किसी ने आपने हैंड रेज किया था अपना? सौम्य, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो लास्ट में समझाऊंगा. वो प्रॉपर्टी नहीं है. प्रॉपर्टीज तो मैं जो बता रहा हूं केवल वही है.
चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी का सीधा मतलब होता है बेटा, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सीधा मतलब होता है, बताएंगे बेटा आदित्य, बताएंगे, रुक जाओ। नहीं, एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ही ऐड होगा, कोई डेसिमल वेसिमल कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सीधा मतलब है कि आपको कितनी मैट्रिसेस लेनी है, तीन मैट्रिसेस के बीच में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। Associative property only applies between three matrices at least. तो 3 matrices क्या है आपके पास में, A प्लस B प्लस C। आपने क्या किया, पहले B प्लस C को ऐड किया और उसे बाद में A में ऐड किया गया। इसी तरीके से A प्लस B प्लस C भी किया जा सकता है। आपने क्या किया, A प्लस B में पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, बाद में C को ऐड किया। You can add B plus C first and then you can go for this particular addition with this particular matrix A। तो आप निकाल सकते हैं B plus C का एडिशन पहले, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप जाके ऐड कर सकते हैं A के साथ। Likewise, you can go for the addition of A and B matrix first, and the final answer that you have achieved with A plus B addition, you can make this added to this particular matrix C। तो पहले आप ऐसे ले सकते हैं कि B plus C उसको ऐड किया, फिर A के साथ ऐड कर दिया, और यहां पे ले सकते हैं आप A plus B को ऐड किया, फिर उसको C में ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टीज जो होंगी ना बेटा, ये कहलाएंगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएंगी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोग एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कितना आप लोगों को वेरीफाई करना है ये फटाफट। ये 2x2 मैट्रिक्स लिया। अच्छा, जितने भी एडिशन के लिए मैट्रिसेस यूज हो रही है ना बेटा, सब क्या होनी चाहिए, सारी की सारी मैट्रिक्स 2x2 ही होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स मैंने 2x2 ले लिया है तो ठीक है, ये 0 2 3 1, ठीक है, और सी मैट्रिक्स हम लोगों ने ले लिया -2 3 4 -5, ठीक है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है, आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि यस दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन। आपको एलएचएस निकालना है, आरएचएस के बराबर करके दिखाना है। आकृति कम्यूटेटिव एडिशन के लिए यूज होता है लड़की, ए प्लस बी के लिए कम्यूटेटिव है, ए माइनस बी के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा। मैट्रिक्स के अंदर तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना नेगेटिव, कोई इशू नहीं है। जैसे ही हो जाए सब लोगों को डन लिख देना है। Once you have completed your verification, please write done in your chat option. किसी भी मैट्रिक्स में कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग दिस मैट्रिक्स A which is 1 2 3 and 4. You cannot add a scalar quantity 1 2 3 4 in this matrix. This is not a valid option because this 2 is not a matrix, and a matrix can only be added into a matrix. Otherwise, this is not a valid addition. This is not a valid addition.
ठीक है यार, सब लोगों ने डन किया है। इसका मतलब देखो, हम लोग b प्लस सी निकालेंगे, तो b को c में ऐड कर लो और उसके बाद a में ऐड कर लो। जो आंसर आएगा वही a प्लस b को ऐड करके उसको, उसका जो एडिशन आएगा, जो आंसर आएगा उसे c में ऐड कर दो, सेम आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। बढ़िया बढ़िया। तो हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी देख लिया, एसोसिएटिविटी। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव भी है, मैट्रिक्स एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। अब आप लोगों को बात करनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट मीन्स एडिटिव identity. What additive identity means, if we have a matrix A, we have to add this matrix A into a matrix so that our final answer would be A. हमें A मैट्रिक्स अगर मिली हुई है तो उसके अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिससे हमारा फाइनल आंसर वापस से क्या आ जाए, A. If we have a matrix A, we have to add a matrix whose addition with this A matrix will give us finally a A. और हम ये कह सकते हैं कि हमें वापस से वही सेम मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है। तो बेटा ऐसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? केवल नल मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? नल मैट्रिक्स। मतलब आपको अगर एक मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तभी जाके आपको फाइनल आंसर वापस से एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर से सुन लो, एक मैट्रिक्स में अगर एक नल मैट्रिक्स को ऐड किया तभी आपको आंसर वापस से एक मैट्रिक्स ए मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, हमारा मेजर फोकस है, क्या मेजर फोकस है कि हमको ए मैट्रिक्स वापस से अचीव करना है। तो इस ए मैट्रिक्स में कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड की जाए जिससे मुझे ए मिल जाए, तो कौन सी रहेगी? नल मैट्रिक्स। और ये नल मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मत बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो आप, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ, ए मेरे पास कितना दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल ले लेंगे। ए मेरे पास कितना दे रखा है? 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 में मतलब ये ए दे रखा है 1 2 3 एंड 4, इसमें आपने ऐड किया 0 0 0 एंड 0, तो क्या आंसर मिलेगा बेटा? 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 1। 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 2। 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 3। 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास ए दे रखा है ये एक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स दे रखा है ये, तो ए प्लस नल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी भी तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सामने है, स्क्रीन जूम आउट कर दिया है, सब लोग देखिए। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर नॉट आस्किंग योर डाउट्स, आई कैन assume that you don't have any problem, so I can move forward. चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? सब लोग सामने देखो, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है तो मुझे उसके अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिनका आंसर क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स।
if we have a matrix A, we have to add this matrix into those kind of matrix whose answer by adding this particular matrix would be 0 or null matrix. ठीक है, अगर हमें A एक मैट्रिक्स दी गई है तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसको अगर मैं उठा के A के अंदर ऐड करूं तो हमारा आंसर आ जाए नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा? ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास में माइनस ऑफ A। ठीक है, A में जब माइनस A ऐड करेंगे तभी नल मैट्रिक्स आएगा। एग्जाम्पल, अगर A मेरे पास कितना है बेटा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो अपने पास में कितना आ जाएगा A प्लस माइनस A, तो A कितना आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, माइनस A कितना आ जाएगा -1 -2 -3 -4, फाइनल आंसर आ जाएगा 1 -1 कितना हो गया 0, 2 -2 कितना हो गया 0, 3 -3 कितना हो गया 0, 4 -4 कितना हो गया 0। तो ये आ जाएगा A प्लस माइनस A विल गिव अस अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने इससे पूछा था। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? A प्लस माइनस A आंसर देगा नल मैट्रिक्स। तो A है 1 2 3 4 माइनस A आपने क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर लिया, दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आ गया 0। बताओ बेटा, ये एडिटिव इनवर्स समझ में आया? यहां तक सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई तो चैट में यस और डन लिखिए। यहां तक अगर सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई तो चैट में यस और डन लिखिए जल्दी। If you have understood all the properties so far, so write yes or done in the chat option. And if you have any doubts, please raise your hand. Next we are going to study is, next property is if we have given a lambda multiplied by A plus B, where lambda is a scalar quantity, A and B are matrices of same order, so your answer would be lambda will gets multiplied with A as well as lambda will multiplied by B. So it seems like a distributive kind of property. That means if we have given a lambda, it gets distributed to A and B and we can write it like this. तो अगर मेरे पास लैम्डा दे रखा है, एक A दे रखा है, एक B दे रखा है, A और B मैट्रिसेस हैं, लैम्डा मेरे पास स्केलर है, तो आप क्या करोगे, लैम्डा A से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लैम्डा B से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये आपको बिल्कुल कैसा लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा लगेगा कि लैम्डा इससे इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा A प्लस लैम्डा B, लैम्डा यहाँ पे स्केलर है एंड A और B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। लैम्डा की वैल्यू कोई भी आ सकती है स्केलर में, मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। A and B are comparable matrix, that's why they should get added. So you can prove this, you can verify this by equating LHS to RHS. ठीक है, आप इसे प्रूव कर सकते हो, आप इसे वेरीफाई, प्रूव तो नहीं वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? LHS को RHS से इक्वेट करके बाय टेकिंग अ मैट्रिक्स A एंड अ मैट्रिक्स B, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर ऑब्वियसली। ठीक है, तो A और B आप सेम ऑर्डर कर लो, दोनों को ऐड करो,
उसमें लैम्डा को एक नंबर चूज करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आंसर आपका एलएचएस से आएगा वही लैम्डा आपने नंबर चूज किया, ए से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा आपने नंबर चूज किया, बी से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का बराबर आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में यार कि लैम्डा चाहे ए से मल्टीप्लाई हो, चाहे वो पहले मल्टीप्लाई हो ए के, चाहे वो बाद में हो, यहां पे लैम्डा स्केलर है, ए मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, लैम्डा चाहे ए से पहले मल्टीप्लाई किया जाए या ए के बाद में लिखा जाए, मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम ही आएगा। मतलब अगर मैं चाहूं ये 1 2 3 4 ऐसे लिख लूं, ये लिख लूं या ये लिख लूं 1 2 3 4 इंटू 2, दोनों का सेम ही आंसर होता है। 2 सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यहां से भी 2 सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा ए इज इक्वल्स टू ए लैम्डा, लैम्डा स्केलर है, ए आपका मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट 7th प्रॉपर्टी है अपनी यार, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2, if we have lambda 1 lambda 2 as scalar quantities and a is a matrix, then you can say that lambda 1 plus lambda 2 multiplied by a would be lambda 1 a plus lambda 2 b. It is moreover a distributive property, nothing like nothing else. So L1 plus lambda 1 plus lambda 2 multiplied by a would give us lambda 1 multiplied by a प्लस लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ये भी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 यहां पे क्या हो जाएंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर स्केलर्स एंड ए मेरे पास क्या हो जाएगा, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। अगर इन प्रॉपर्टीज में किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं तो हम लोग एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं, बताओ जल्दी कोई दिक्कत है तो। अगर कोई दिक्कत है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज राइट yes or done in the chat option so I could understand that you have got everything what I want to taught you so that we can move forward. AJ, lambda is always clear. हेलो, AJ बोलो बेटा। lambda always scalar होता है ना? लैम्डा always scalar होता है प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टीज में लैम्डा वैम्डा लिखा होगा, वैसे वो लिख के देगा। लैम्डा वो कोई मैट्रिक्स भी ले सकता है, लेकिन वो आपको लिख के देगा बकायदा कि लैम्डा उसने क्या कंसीडर किया है, कि लैम्डा स्केलर कंसीडर किया है या क्या कंसीडर किया है उसने। ठीक है सर, थैंक यू। अगला चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास। आप लोगों को फाइंड करना है x की वैल्यू व्हेन 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर दे रखा हो बेटा, 5b के बराबर। ठीक है, आपको x की मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो हर कोई। x की मैट्रिक्स फाइंड करनी है आप लोगों को, जल्दी। जल्दी 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 x फाइंड करना है आप लोगों को।
ईश्वर देख लिया, इतना मैसेज मत लिखो, देख लिया मैंने। आकृति ने भी दे दिया है आंसर। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, सामने जिन लोगों से नहीं हुआ, हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो 2a माइनस, या सीधा इसको इधर उठा के ले जाओ, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a, तो x इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स ऑफ b माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ a। x इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स ऑफ b माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ a। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। बस a की वैल्यू यहां पे उठा के डाल दो, b की वैल्यू यहां पे उठा के डाल दो, दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लो यार। ये देखो सामने किया गया, आंसर मैच कर लीजिए। अगर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताइए। हमने कुछ नहीं किया है, 1/3 को नीचे ले भेजा तो b से 5/3 मल्टीप्लाई कर दिया और a से 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाए थे आपको, दोनों मैट्रिसेस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। किसी का मैच ना हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, आंसर में किसी को मैच ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जल्दी बताओ। आदित्य, हमने कुछ नहीं किया बेटा, इस a को उठा के इधर ले गए तो ये कितना हो गया 5b माइनस 2a, ठीक है। तो x कितना हो गया 3 नीचे आ गया, तो 1/3 5b माइनस 2a। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये दे रखी है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। a की वैल्यू है 8 0 4 माइनस 2 3 6। तो हमने b की वैल्यू को उठा के डाल दिया इस केस में यहाँ पे, और a की वैल्यू को उठा के डाल दिया यहाँ पे। 1/3 को ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/3 अंदर चला गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 अंदर चला गया, सारे एलिमेंट से 5/3 और यहाँ पे सारे एलिमेंट से 2/3 मल्टीप्लाई हो गया। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरा तरीका है 1/3 को बाहर रख लिया, 5b माइनस 2 है आपने निकाला, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय b किया, ये आंसर आया। 2 मल्टीप्लाइड बाय a किया, ये आंसर आया। तो 5b माइनस 2a, इन दोनों का माइनस को इसने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो प्लस आ गया, तो माइनस ऑलरेडी अंदर चला जा चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों को ऐड कर दिया, मतलब वो इनडायरेक्ट क्या होता है, देखो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो कि -1 को पहले b से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और उसको फिर a में ऐड कर दो, वो एक ही चीज होती है। बस आपने ऐड किया तो ये रिजल्ट आया, 1/3 को उससे डिवाइड किया तो कुल मिला के आपके पास में ये आंसर आ गया। 1/3 को उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? हाँ अलका, पूछो बेटा। अलका, यस सर। पूछो बेटा। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने हैंड रेज किया था ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो पिछला टॉपिक जो भी अभी तक हम लोगों ने खत्म किया है यार, उसके बेसिस पे अभी तक आपका जो होमवर्क बनता है,
आपकी बनता है होमवर्क अभी तक जो पिछला पढ़ा है उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.2 के 14 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में यहां पे सिखा पाया तो बाकी भी कर लेंगे, लेकिन इसमें से 14 क्वेश्चन 14 तक अप टू क्वेश्चन 14, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन का है, वो आप नहीं करना। अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? ध्यान से सुन लो। होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 3.2 जो आपको दे रखी है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है आपको, जो सिर्फ एडिशन पे है। लेकिन अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज मेरे से काफी हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर पाओगे आप, अदरवाइज 3 नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलिए तो लेते हैं बेटा, ये आपका अभी तक का होमवर्क है, तो इस चीज को थोड़ा साइड में डाल देते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है? तो हम लोगों को आगे बढ़ना है यार, क्या आगे बढ़ना है? नेक्स्ट इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। This matrix multiplication topic is a very interesting topics, one of the very interesting topics so far. That means मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी अभी तक पिछले वाले हिस्से में आपको कहीं पे कोई दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है? ये थोड़ा सा आपका डिमांड करेगा, आपके एफर्ट्स को डिमांड करेगा। बाकी सब जगह में अभी तक कोई भी चीज नहीं यूज होगी, ठीक है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं यार। सबसे पहले, हाउ टू आइडेंटिफाई that these two matrices, if we have given two matrices, then we have to identify कि these two matrices can be multiplied or not. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो यही बनता है कि if we have given two matrices, one is A whose order is m cross n and the second is B whose order is written over here, these two matrices multiply, we can multiply these two matrices or not, this is the major concern, ठीक है? कि आप इसे मल्टीप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एंड इफ we can multiply then how could it possible and how is the things going, कैसे आप लोग इसको करोगे, क्या आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो फंडा है ना बेटा, वो ए कहता है m क्रॉस n, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना चाहती हैं तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये क्या रखना चाहिए, n क्रॉस r ऑर्डर रखना चाहिए। अभी मैं बता दूंगा क्या चीज बोलना चाहता हूं मैं, n क्रॉस r ऑर्डर रखना चाहिए। तो ये n इस n से मैच हो जाना चाहिए, तभी आपका m क्रॉस r ऑर्डर आउटपुट में आएगा। अब सुन लो यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि अगर एक मैट्रिक्स A है whose order is m cross n, and if this matrix wants to multiply by this matrix B whose order is n cross r, then there is a relation that says number of rows, this m represents the number of rows, n represents the number of columns. Likewise, in the same B matrix, n represents the number of rows, r represents the number of columns. Then this matrix addition would be possible only if the number of columns in the matrix A, that means this, is equal to number of rows in matrix B, only when these two matrix gets multiply and will give you the answer A into B. अब सुन लो कैसे हिंदी में, कि अगर मेरे पास A मैट्रिक्स एक है जो m क्रॉस n ऑर्डर रखता है, B मैट्रिक्स मेरे पास एक है जो n क्रॉस r ऑर्डर रखता है, अगर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, पहली मैट्रिक्स जो लिखी हुई है आगे की तरफ
उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स जो लिखी हुई है आगे की तरफ उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी आप बोलोगे कि आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, a इंटू बी जिसका ऑर्डर रहेगा m क्रॉस r, a इंटू बी जिसका ऑर्डर रहेगा m क्रॉस r। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे वो बाद की बात है, लेकिन इसके नंबर ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि ए बी जो है वो मेरा m क्रॉस r के बराबर आंसर देगा। यहां ये सारी की सारी चीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब कैसे होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक एग्जांपल उठाते हैं कि बेटा ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ए मेरे पास दे रखा है कितना 1 2 3 एंड 4, बी दे रखा है हम लोगों ने कितना, बी दे रखा है 3 1 2 4 6 7। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। तो देखो बेटा इसके नंबर ऑफ को रोज मैं चाहता हूं कि ए मेरा बी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या। तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो ए इंटू बी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन क्या बी इंटू ए ये पॉसिबल हो सकता है क्या। तो देखो बेटा अगर बी पहले बोला है तो बी के नंबर ऑफ कॉलम चेक करने पड़ेंगे, और ए बाद में बोला है तो ए के नंबर ऑफ रोज चेक करने पड़ेंगे। तो बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो यस बी क्रॉस ए पॉसिबल है। फिर से सुन लो, अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, बी मेरे पास है 3 क्रॉस 2, तो आपसे बोला जाए कि भैया ए इंटू बी पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे सर इसमें कितना आ रहा है 2, इसमें कितना आ रहा है 3, तो आप बोलोगे कि सर 2 और 3 ये दोनों तो मैच नहीं हो पाए, ये इसके बराबर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब a इंटू बी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से b इंटू ए पॉसिबल है क्या, b आपके पास दे रखा है ये, a आपके पास दे रखा है ये, तो b का आंसर कितना आ रहा है आपके पास और a का आंसर कितना आ रहा है, उनका मल्टीप्लीकेशन देखना पड़ेगा। b का आंसर देखो, b में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दे रखे हैं आपको, b में नंबर ऑफ कॉलम दे रखा है 2 और a में नंबर ऑफ रोज कितना दे रखा है 2। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो पूछिए, अगर दिक्कत नहीं है तो अब मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे वो हम देखने जा रहे हैं। एजे एजे पूछो बेटा। हेलो सर। पूछो हेलो बेटा। सर, हाँ बोलो। इस a इंटू बी और b इंटू ए से हम ये कह सकते हैं ना कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। हाँ वो उसकी प्रॉपर्टीज में आएगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं अब सिखाना चाहता हूं आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन उठाएंगे वो समझा देंगे आपको। नहीं है, चलिए सामने देखिए सब लोग, अब मैं इस b और a को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो हम लोगों को बताना है हाउ दिस मल्टीप्लिकेशन विल गोइंग टू हैपन, कैसे हम ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखो बेटा b क्रॉस a इसमें मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, तो b की मैट्रिक्स को लिख लो आगे, ये लिख लिया आपने 3 1 2 4 6 7। ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। ये ऐसा लिख लिया आपने, आपने बोला यार b क्रॉस a दे रखा है, b क्रॉस a दे रखा है 3 1 2 4 6 7 और a कितना है 1 2 3 4। अब b क्रॉस a होगा क्या, b क्रॉस a रिप्रेजेंट करेगा, देखो यार हमने बोला था इसका कितना आ रहा है 3 क्रॉस 2 और ये आ रहा है 2 क्रॉस 2, तो दोनों में नंबर ऑफ, इसमें पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे। ये जो इसकी पहली रो है ना,
वो इसके पहले कॉलम से जाके एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हिलना नहीं, सब लोग ध्यान से देखो। जो पहली रो है ना, वो पहले कॉलम से जाके एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, कितना आ गया 3। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, फिर से कितना आ जाएगा 3। फिर से सुन लो, ये पहली रो पहले कॉलम से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 3, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3। फिर यही पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दे देगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाएगा, ये वाली जो रो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16। अब देखो लास्ट वाली रो पहले कॉलम से होगी, तो पहला एलिमेंट पहले से 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, ये कुल मिला के ऐसा लिखा जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास में 20, ये हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 21 27, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लो, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे और इसका ऑर्डर देखो। हमने क्या बताया था आपको, ऊपर बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा तो ऑर्डर इसका रो और इसके कॉलम m क्रॉस r आ जाएगा। तो यहां पे देखो, इसका रो और इसका कॉलम 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। देखो 3 1 2 4 6 7 1 2 3 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 3 इंटू 1 1 इंटू 3 3 प्लस 3। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 1 इंटू 4, ये आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 4 इंटू 3, ये आ जाएगा। ये इससे होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 4, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 इंटू 1 7 इंटू 3, ये एलिमेंट 6 इंटू 2 7 इंटू 4, ये आ जाएगा। पूरा आंसर आ गया, ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2। बताओ मयूर क्या पूछना चाहते हो? सर वो 12 प्लस 28 होगा ना, वो 30 आएगा लास्ट में। अच्छा 40 आएगा, 40 है ना? ठीक है, हाँ 40 आएगा, मैंने कर लिया, करेक्ट कर लिया। हाँ, ये नंबर ऐड क्यों हो रहा है? देखो यार बेटा, ये प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का। 3 देखो, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। देखो 3 और 1 एक तरीके से सुपर इंपोज होंगे किसके ऊपर, इसमें। तो ये रो और ये कॉलम 3 1 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एसोसिएट होने का तरीका क्या है? एडिशन। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 और 3 कैसे लिखा है? 1 और 3, इसके ऊपर ये 3 और 1 सीधा इंपोज कर देते हैं हम लोग, ये 3 और ये 1। तो ये 3 इंटू 1 आपको आंसर देगा, 1 इंटू 3 दोनों को ऐड करके आंसर लिखा जाता है। ये मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस है बेटा। तो क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं श्रुतिका? ये प्रोसेस है बेटा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तभी आंसर आता है। सब्सट्रैक्शन से आंसर आएगा नहीं, या मल्टीप्लीकेशन दोबारा कर देंगे तो भी आंसर आएगा नहीं। बताओ बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, दोनों सॉल्व करके दिखाओ मुझे। अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों में से कोई भी अपना डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो मुझे क्लियर हो रहा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं यार। एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स मेरे पास ले रखा है 1 2 3 4 5 6। चलो ये हटा देते हैं, 2 क्रॉस 2 लेते हैं।
और बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 0 3 2। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। आपको कैलकुलेट करना है ए बी सबसे पहले, मतलब ए इंटू बी निकाल के देखना है क्या ये वैलिड होगा क्या। हाँ, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हो रहे हैं, होगा। बी ए मतलब बी इंटू ए, क्या ये भी वैलिड होगा क्या। हाँ, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हो रहे हैं, ये भी होगा। तो ए बी होगा मल्टीप्लाई, बी ए होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप लोगों को ए बी और बी ए वाला फंडा बताना है, क्या ए बी और बी ए बराबर आएंगे क्या। तो पहला आपको निकालना है ये, दूसरा आपको निकालना है बी ए, और तीसरा आपको बताना है इज ए बी इक्वल्स टू बी ए और नॉट। ठीक है, फटाफट चलो ए बी कैलकुलेट करके बताइए कितना आया सब लोग। ए बी कितना आया जल्दी बताइए। ए बी बताइए सब लोग। ए बी आ रहा है 7 4 19 10, मैक्सिमम लोगों का यही आ रहा है 7 4 19 10। ए बी अपना आना चाहिए, सब लोग जल्दी निकालो ए बी। जिसका ए बी आ गया वो बी ए निकाले भाई, बी ए, और मुझे बताए क्या ए बी बी ए के बराबर आ रहा है क्या। बी आ रहा है 1 2 11 16, ऑब्वियसली ये बराबर नहीं आ रहा 7 4 19 और 10 के, तो सीधा सीधा ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं आ रही है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है यार, ए बी बी ए दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट इक्वल। तो बताइए दोस्तों, होमवर्क सुन लीजिए, अब होमवर्क थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। एक्सरसाइज 3.2 इसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंक्लूडेड रहेगा उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करने हैं, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी भाई। यस, बी ए और ए बी बराबर नहीं आएगा, सब लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, सब लोग प्लीज होमवर्क नोट कर लीजिए 3.2 और अप टू क्वेश्चन नंबर 17। दूसरा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि रिलेशन फंक्शन का मॉड्यूल जो है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका मॉड्यूल कंप्लीट कर लें आप लोग। उसके सोल्यूशन भी डले हुए होते हैं, मॉड्यूल के सोल्यूशन भी डले हुए हैं, तो प्लीज आपकी जिम्मेदारी है कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और सारे के सारे डाउट्स आप लोग फ्रेश चैट पे, आपके ग्रुप पे, जहां भी आप डाउट पूछ पाते हो वहां पे पूछ लें। ये मैं रेगुलर हर क्लास में बोल रहा हूं आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है रिलेशन एंड फंक्शन का मॉड्यूल कंप्लीट होना, और उसके आंसर्स जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी वैसे गिवन होते हैं, लेकिन आप लोगों को पूछना है। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, 3.2 एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज सब लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ आ जाइए। तो ए बी और बी ए दोनों देखो, प्रोडक्ट दोनों का आ सकता था, ए बी भी आ रहा था और प्रोडक्ट बी ए का भी डिफाइन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो ए बी भी आ रहा है बी ए भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कह सकते कि मेरा ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम नहीं कह सकते ए बी मेरा किसके बराबर है, बी ए के बराबर है।
बताओ भाई, कोई दिक्कत है? हाँ ईश्वर भेज देंगे। बताइए, अभी अपने पास है 6 मिनट, तो अगर यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए, या हैंड रेस कीजिए और पूछिए। अदरवाइज एक बार क्विक रीकैप ले सकते हैं। आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अभी अपने पास 6 मिनट, इससे ज्यादा हम कवर नहीं कर रहे हैं।